everyone, welcome to another career counseling session. In this session, I am going to introduce you to a new career opportunity that you can opt after your class 12 or after graduation. The new career opportunity that I am going to have discussion with you all is career as financial planner. So who is financial planner and what does they actually do and what's their actual role in market and in anyone's life? We are going to have a discussion here. So first of all, we are going to see the career overview. Actually in this, we are going to have discussion on who is financial planner, what role they play and why they are important and how they are gaining important in current world scenario. So first of all, let's discuss who is actually the financial planner is. First of all, he is the guide in investment decision. Typically, financial planner is also a financial professional who helps the people in deciding what can be their investment opportunities, what can be their investments decision, and they help typically in investment making decision, and there are other financial decisions in which they help and plan these things on part of individual and on part of institution. So they are typically the first financial planner who provide the advice, guidance in terms of what? In terms of investment decision. And that's why they are called as investment planner also. See, हमें पता है कि आज के सिनारियो में जो फंड्स हैं उनको मैनेज करना किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, बट आज के समय में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ से हम मोर एंड मोर रिटर्न गेन कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट नॉलेज एंड हमें उस नॉलेज को यूज़ करना, जो ये फाइनेंस के एस्पेक्ट में, जो इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट में जो हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट अवर फंड वाइजली. नाउ नॉट एवरीवन कैन एक्सेल दिस नॉलेज. So typically there are certain person जो इस फील्ड में ही काम करते हैं because there is demand, and जहाँ डिमांड होती है वहाँ करियर अपॉर्चुनिटी ज़रूर निकल के आती है. देखा गया over the time that there are so many customers who search for the advices, suggestion in respect of the saving and investment and also for the tax suggestions, and they always keep on thinking कि ये हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पता लगाएं, इसमें हमारी हेल्प कौन कर सकता है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आई, एंड ये करियर अपॉर्चुनिटी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानर. He is the person who will advise, who will provide the assistance in all these things. लोगों की एंड यहाँ उन सभी इंडिविजुअल, उन सभी कस्टमर्स की हेल्प करना जिन्हें किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए. अगर उन्हें अपना बिजनेस ओपन करना है तो फंड कहाँ से लाना है, किस तरह से वो अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, किस वे में उनका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड आगे अगर देखा जाए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड किस बैंक से उन्हें फंड रेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी डिसीजन मेकिंग में उन्हें असिस्ट करते हैं कौन? Financial planner. Here, financial planner not only provide the advices related to the investment, but he also provide the assistance in terms of business finances, in terms of risk management of business, and he also provide the assistance and the knowledge and advices in respect of the tax planning. There are majorly so many segments in which he provide the assistance, advices, suggestion. Okay, for being a successful financial planner, you need to have a thorough knowledge of subjects like finance, in which the things you must excel in knowledge is the like tax planning, tax management, and investment management and investment planning, and the other aspects are like risk management, asset allocation, fund allocation. So these are the field of specialization that you need to have knowledge of it. So it requires this field, this career opportunity requires the knowledge of these segment, and you can get these knowledge by pursuing the graduation course, जिसमें मोस्टली फोकस किस पे किया जा रहा हो? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. इट मीन्स फाइनेंस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे तो ज़्यादा फोकस हो, तो वहाँ आप इन सभी नॉलेज को गेन कर सकते हैं. एंड विद द इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यू कैन हैव द नॉलेज that is required to become the successful financial planner.
Okay, so this is what actually the financial planner is. Financial planner is the person who have a thorough knowledge of finance segment. It includes the thorough knowledge of asset allocation, fund allocation, investment planning, tax planning, and the risk management. So these are the segments in which he mainly provide his assistance, his advices, and he mainly he can be the person who can be appointed as on higher basis in some company, and even he can start his own practice where he will provide these advices against some commission. So now, on the basis of meaning, let's see what are the roles of financial planner, what they actually do, and in which work they are actually involved. First is they are involved in the tax planning. As I have told you, they are the tax planner. They are called as tax planner because they provide assistance to all the individual, to the company, to the institution, to save the taxes and the modes of investment so that it will help in saving the amount of tax that they will pay to the government. तो टैक्स प्लानर की तरह ये यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए टैक्स प्लानिंग करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अपनी सेविंग को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, जो उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है, उसे किस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो उन्हें रिटर्न के फॉर्म में वापस भी मिले एंड साथ ही साथ इट विल बेनिफिट देम इन टर्म्स ऑफ टैक्स फाइलिंग. तो मेनली यहाँ पे होता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से हमारा टैक्स बर्डन बच जाए. इट मीन्स हम कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दें, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी वो हमारे लिए फ़ायदे होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ से जो रिटर्न मिलेगा वो उस पर्टिकुलर पर्सन को ही बिलोंग करेगा. तो ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह से अपनी सेविंग को, अपनी प्रॉफिट को, अपनी रेवेन्यू को इन्वेस्ट करें ऐसी जगह पे जहाँ से हमारी जो टैक्स बर्डन है ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो रिड्यूस हो जाए. So these are the things where financial planner play the most of the role. So now in current scenario, one of the career opportunity is in financial planner because they act as the tax planner also. They open their own practice, own firm where they provide advices related to the tax planning. They suggest the investment avenues, they suggest the investment plan which an individual can opt to save the tax liability. And they also help the individual to use the tax loophole so that tax burden can be reduced. So इसमें हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं जिसमें फाइनेंशियल प्लानर एक्सपर्ट होता है and he provide the suggestion and tax planning to the individual. So it is one of the role. He does what? He does the tax planning for their customer and for the company for which he works. Next, estate planning. Estate planning का मतलब होता है प्लानिंग कि जो भी एस्टेट एक पर्सन के नाम है या किसी कंपनी या इंडिविजुअल के नाम है, उस एस्टेट को वो एट द एंड मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन और इंडिविजुअल वो किसे बिलोंग करेगी, या फिर अगर ये कोई डिसाइड करता है कि विल कैसे लिखी जानी चाहिए, किस तरह से उसे एलोकेट करना चाहिए अमंग द फैमिली मेम्बर, एंड उसके जाने के बाद किस तरह से इन एसेट्स को एलोकेट किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा. तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में, ये सारी चीज़ें प्लान करने में फाइनेंशियल प्लानर भी हेल्प करता है. तो एस्टेट प्लानिंग, अगर किसी को एस्टेट प्लानिंग करनी है, ये अपनी विल बनवानी है कि किस तरह से हम अपनी विल को बनवाएं ताकि जो हमारी आगे की जनरेशन है उन्हें भी बेनिफिट हो, वो भी बेनिफिशियल हो इस चीज़ से जो भी एसेट्स एक पर्टिकुलर पर्सन ओन कर रहा है. तो अक्सर काफ़ी लोग आजकल यहाँ पे एस्टेट प्लानिंग को भी ऑप्ट करते हैं एंड दीज आर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल प्लानर. Next is investing. They play the major role in investing activities. Also, they help in deciding the investment plans and they provide the new. They help in identifying the new investment opportunity in which an individual and their client can invest. तो नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज सजेस्ट करना अपने क्लाइंट्स को एंड न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, एक प्रॉपर सेविंग का क्या तरीका हो सकता है ताकि जो कस्टमर के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट आउट हो सके. हर किसी का सेविंग का एक पर्पस होता है, हर कोई एक पर्पस से सेविंग करता है और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये सेविंग हम इतने ईयर फॉर द ईयर हम करना चाहते हैं सो दैट हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए. तो अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको पता है कि उन्हें सेव करना है बट
एफिशिएंटली कैसे करना एंड कैसे करें इफेक्टिवली कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है दैट इज अटैच विद द सेविंग दैट दे आर डूइंग, तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, कितने अमाउंट ऑफ सेविंग्स अचीव होगा, इसकी प्लानिंग में फाइनेंशियल प्लानर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। Along with this, they help in deciding the investment plans for the customer. They provide them alternatives in which they can invest and they provide them investment plans जिसमें customers अपने amount of saving को invest कर सकते हैं। So they involved in the investing work, also insurance। अगर किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को इंश्योरेंस प्लान लेना है तो किस तरह का इंश्योरेंस प्लान उन्हें लेना चाहिए, उन्हें किस तरह के रिस्क कवरेज के लिए विच टाइप ऑफ प्लान को ऑप्ट करना चाहिए ताकि जो इनका ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंश्योरेंस, ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस, वो फुलफिल हो सके। तो हम कह सकते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग में भी फाइनेंशियल प्लानर हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन सजेस्टिंग एंड दे प्रोवाइड द एडवाइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो, एंड ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को भी, कंपनी को भी। एंड ये अगर हायर बेसिस पे हैं तो देखते हैं कि कंपनी को किस तरह की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, कब किस तरह के नए प्लान को कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए, कितना प्रीमियम रेट यहाँ पे करने की ज़रूरत है, किस तरह के प्लान यहाँ पे किया जा सकता है फॉर द इंडिविजुअल और फॉर द कंपनी। So these are the things that are worked on by financial planner. Next, they are involved in the planning and budgeting. Okay, if any individual wants to plan their finances and wants to achieve some financial goals, तो उसके रिगार्डिंग भी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड करने का काम फाइनेंशियल प्लानर का है। एंड प्लानिंग इन द सेंस कि क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, मेथड्स क्या हो सकते हैं रेजिंग के, एंड फंड एलोकेशन क्या होना चाहिए, फ्यूचर में रिस्पेक्टिव टारगेट सेल को कैसे अचीव किया जा सकता है, एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो कैसे किया जा सकता है, आगे फर्दर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में किस तरह की फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस तरह से फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, एंड इसी तरह बजटिंग में हेल्प करना ऑफ द कंपनी, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल प्लानर प्रोवाइड द असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड बजटिंग, फ्यूचर एक्शन प्लान बनाने में हेल्प करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंसेस। दे हेल्प इन बजटिंग की एक एप्रोप्रिएट बजट क्या होना चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द डिपार्टमेंट, एंड ऑल्सो ये डिसाइड करते हैं कि कोई अगर नया प्रोजेक्ट या नए यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बजटिंग क्या अलॉट करनी होगी। सो दे हेल्प इन बजटिंग ऑल्सो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स, एंड हम कह सकते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट की बजटिंग से ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को टेकअप करना है कि नहीं करना है। सो विद द हेल्प ऑफ बजटिंग दे प्रोवाइड द एडवाइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। सो दीज आर द रोल्स दैट financial planner plays for any individual, for the organization or institution. The next thing is CFP job role. What is CFP? CFP is the Certified Financial Planner. Certified Financial Planner, it means you can do some professional courses. I will tell you what professional courses you can pursue to become the Certified Financial Planner, that we will cover in the next upcoming session. So till now we have covered the career overview and we have understood who is actually the financial planner and what role actually he plays for any organization, for any individual. So his actual job role is to first of all identify his customer, his client for whom he is working, and their needs and objectives that he wants and that particular client wants to fulfill from the finances. तो फाइनेंसेस को यहाँ पे देखना एंड देन उनकी रिक्वायरमेंट को एसेस करना, आइडेंटिफाई करना कि उसके क्लाइंट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंसेस। नेक्स्ट, assessing the client's financial status. After this, फाइनेंशियल स्टेटस एसेस करके उन्हें फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड करने का काम फाइनेंशियल प्लानर का होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट फाइनेंशियल प्लानर डज फॉर इट्स क्लाइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करता है, उसकी नीड्स रिक्वायरमेंट को एसेस करता है एंड देन उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस एंड रिक्वायरमेंट एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्लान टू द क्लाइंट। After that, he helps the client in implementing the plan and review करता है उस प्लान को periodically so that जो client की objective हैं, goals हैं related to the financial plan वो achieve हो सके। So this is what actually the financial planner does. This is what his role is and this is how he perform his job. So that's all for this session. We have covered the detailed discussion on
the career overview. The next aspect, the other aspect we will consider in the next upcoming session. We will meet with other aspects that you need to know before you pursue this career opportunity. Till then, take care and stay tuned to us for more such videos. Thank you.